Now today we are going to discuss about the Meniere's disease. What is the Meniere's disease? Meniere's disease is the disease of the inner ear, and today we are going to discuss about the symptom of the Meniere's disease, etiology of the Meniere's disease, and the treatment of the Meniere's disease. That image is the cochlear duct. If we define the Meniere's disease in one line, that is hydropic distension of the endolymphatic system in the inner ear cause the Meniere's disease. That is what? Hydropic distension of endolymphatic system. Hydropic distension of the endolymphatic system cause the Meniere's disease. किसी भी तरह से जो होता है इंडोलिम्फेटिक सिस्टम का जो होता है वॉल्यूम बढ़ जाना, जो रेस्टल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दे या जो होता है प्रेशर क्रिएट करे, वो क्या कहलाता है? Meniere's disease. एंड द सिम्टम्स ऑफ द Meniere's disease, फर्स्ट vertigo, second tinnitus, oral fullness, and hearing loss. This is the main symptom of the Meniere's disease. Symptom क्या है इसके? vertigo, tinnitus, oral fullness, and hearing loss. This is the cochlear duct, where this is perilimb, and here the endolimb, and also here perilimb. The main reason which cause the increase the volume of the endolimb, which create the pressure on the wrist nerve membrane, that gave the symptom of the Meniere's disease. एंड हम लोग इसकी etiology की बात करें, etiology of the Meniere's disease. etiology of the Meniere's disease की हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिकल डिसऑर्डर. Genetical disorder in which the gene HLA and HLA-C, which found on the chromosome number 6. Chromosome number 6. If the mutation occurs in the HLA gene, HLA-C, which found on the chromosome number 6, which cause the Meniere's disease, due to which the endolymphatic volume are increased and create the pressure on the wrist nerve membrane. Second, that is traumatic. Due to any reason, if trauma occurs of the inner ear, the ruptures of the wrist nerve membrane, due to which the endolymph and perilimb forming sodium potassium volume, sodium potassium concentration may change, which cause the Meniere's disease. First, second, third, that is viral infection. Viral infection. In this virus, the herpes simplex type 1 and enterovirus VP1 These virus infection, if occur to the person, may cause the Meniere's disease. Second, that is allergy. Fourth, that is autoimmune disorder. This is the etiology of the Meniere's disease. It is the symptom of the Meniere's disease. And if we discuss about the pathophysiology, and if we discuss about the pathophysiology, तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए हम लोग यदि हम लोग बात करें यहाँ पे पेरिलिम्ब, एंडोलिम्ब एंड पेरिलिम्ब, दिस इज द ऑर्गन ऑफ कटई, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, पेरिलिम्ब, रेसन मेम्ब्रेन, कॉक्लियर, दिस इज द कॉक्लियर डक्ट, इनर ईयर, पार्ट ऑफ द इनर ईयर. इस केस में क्या होता है, ड्यू टू स्टाइवस्कुलर ब्रीथ,
vascularis. Stria vascularis is the place where the endolymph was secreted. Due to any reason, genetical, traumatic, viral infection, allergic and autoimmune, any cause which increase the volume of endolymph, due to increase the volume of endolymph, pressure created on the organ of Corti. तो what is organ of Corti? Organ of Corti में क्या होता है? Long hair cell, short hair cell, supporting cell and tectorial membrane. इंडोलिम्फेटिक जो तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इंडोलिम्फेटिक वॉल्यूम बढ़ने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गन ऑफ Corti में हेयर सेल्स क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं. क्या क्या होता है इसमें? पैथोफिजियोलॉजी की हम लोग बात करें, पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इंक्रीज द endolymph. First of all, hair cells are damaged. Hair cell damage endolymph की वॉल्यूम बढ़ने की वजह से. सेकेंड, वेस्टिबुलर सिस्टम. सेकेंड इज व्हाट? वेस्टिबुलर सिस्टम नॉट वर्किंग प्रॉपरली. वेस्टिबुलर सिस्टम नॉट वर्क प्रॉपरली ड्यू टू इंक्रीज द endolymph. जब endolymph की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, दैट मेम्ब्रेन आफ्टर सम टाइम देन इज प्रेशर मोर द फेनप ब्रेक द रिसनर मेम्ब्रेन. तब जाकर के इंडोलिम्फ पेरीलिम्फ मिल जाता है, जिससे इंडोलिम्फ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोटेशियम, और पेरीलिम्फ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम. ये जो होता है वॉल्यूम एक दूसरे में डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है अपने आप ही वेस्टिबुलर सिस्टम क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है. हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं. फर्स्ट, हेयर सेल्स डैमेज होने की वजह से इसमें क्या आने लगता? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस. फर्स्ट, वेस्टिबुलर सिस्टम डैमेज होने की वजह से क्या हो जाता है? वर्टिगो. Oral fullness. How the first symptom Meniere's disease oral fullness occurs. इसको हम लोग देखेंगे कि oral fullness जो होता है सबसे पहला सिम्टम यदि इसमें आता है तो वो oral fullness आता है. Meniere's disease में सबसे पहला सिम्टम जो होता है oral fullness क्या होता है? जब इंडोलिम्फेटिक वॉल्यूम बढ़ने लगता है तो ये क्या हो जाता है? प्रेशर ज़्यादा इस पर बढ़ने लगता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से कान भारी भारी सा लगने लगता है. दैट इज कॉज oral fullness. और उसके बाद क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी दूसरी बात करें, जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑर्गन ऑफ Corti के हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं. हेयर सेल्स डैमेज होने की वजह से क्या होने लगता है? सुनाई देना कम हो जाता है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. सेकंड, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, इसमें मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है, तो उसमें वेस्टिबुलर सिस्टम सही से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या आने लगता है? वर्टिगो. और ये देखेंगे कि टिनाइटस कब आता है? जब इंडोलिम्फेटिक्स जो होता है सोडियम पोटेशियम वॉल्यूम जो होता है एक दूसरे में अच्छे से प्रॉपरली जो होता है एक कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है, तो जो होता है कॉक्लियर सेल्स जो होते हैं एबनॉर्मली जो होता है स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? टिनाइटस. कॉक्लियर स्टिमुलेशन एबनॉर्मल कॉक्लियर एबनॉर्मल स्टिमुलेशन कॉज द टिनाइटस. This is the pathophysiology. This is the symptom, etiology and pathophysiology. Now the treatment की हम लोग बात करें और जो होता है इसकी बात करें जो होता है ट्रीटमेंट के साथ साथ जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डायग्नोज द Meniere's डिजीज. इसमें हम लोग क्या करा सकते हैं? PTA. सेकेंड, इंडोकॉक्लियर ग्राफी. थर्ड, MRI with internal auditory canal. This is the diagnostic part of the Meniere's disease. Now the treatment के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द सोडियम चेक करेंगे, मतलब नमक चेक कर देंगे कितना, 1 से 2 ग्राम पर डे. दूसरा क्या कर सकते हैं? इसको डायूरेटिक देंगे, जिससे क्या होगा? फ्लूइड कम होगा. थर्ड जो होता है इसमें यदि एलर्जी हो रहा है तो हम क्या दे देंगे? इसको
एंटीहिस्टामिनिक। फिर वर्टाइगो डिजीनेस कम करने के लिए हम इसको क्या दे सकते हैं, ओंडेनसेट्रॉन से रिलेटेड ओंडेनसेट्रॉन दे सकते हैं, बीटा हिस्टीन। यदि वोमिटिंग टेंडेंसी है तो ओंडेनसेट्रॉन। सर्जिकल ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसनर मेम्ब्रेन, दैट्स डन बाय द ENT सर्जन, that done by the ENT surgeon।